Good morning, students. Today I will discuss some topics in biotechnology, very interesting and some small topics which I have missed in my previous classes, maybe. Or these topics are somewhat related to endability, that is, further learning or advanced learning, you can say. So, let's begin with DNA fingerprinting. Now, DNA fingerprinting is what? DNA fingerprinting is a technique by which actually we can analyze or compare two different sets of DNA, one with a known sample and with another unknown sample. Say, for example, there is a murder. There is a murder in a particular house where two blood samples were found. Now, one blood sample is from the victim, that is who died. But other sample we don't know किसका है, कहाँ से आया, और कहाँ से आया ठीक है, मान लेते हैं जिसने मर्डर किया उसका है, लेकिन वो है कौन भाई? ब्लड से थोड़ी ना समझ में आएगा कि किसने किया है मर्डर. Now, in this respect, what we can do is actually we can go for fingerprinting, that is DNA fingerprinting. तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये ब्लड सैंपल है जो हम लोग को विक्टिम के ब्लड सैंपल का है या फिर क्रिमिनल का जिसने किया है, हमने ये ब्लड सैंपल कलेक्ट किया. इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया. We have extracted the DNA. ये DNA extract होने के बाद what we will go for? We discuss this age, that is agarose gel electrophoresis. Now, after doing age, that is agarose gel electrophoresis, what we are getting is we are getting various pieces of DNA. Now, then we will go for blotting या फिर hybridization. So for DNA it is southern hybridization as I discussed about it. Now, after the bands I got from here, the separated DNA, what we will do is we will take the beaker where we will place a membrane which is made up of nylon, specifically mostly it is nylon 66. This nylon 66 membrane जहाँ पे via buffering और via capillary action यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा. लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे डीएनए प्रोब लिया था. But this time we are not taking ऐसा वैसा probe, rather what we are taking radioactive probe. Now, radioactive probe का क्या है कि this DNAs what they can do when they will be examined, this DNA probes will show some radiations. Now, मान लीजिए हम लोगों ने जो DNA probe लिया है, they are overlapping each other and they bind to this DNA samples which are there in the solution and not in the solution, in the agarose gel actually, and then it has been transferred into this membrane called nylon 66 membrane. Now then what we will do, we will take this nylon 66 membrane and then we will go for X-ray reflection. Now, if there is X-ray reflection, what we are getting is actually if the probe are binded with the DNA which we have collected, that means what?
the DNA are complementary, the DNA sequences are complementary to the specific DNA extracted. Now these DNA probes are very wisely chosen. Why it is wisely chosen? Basically, the chosen DNA probes are from the suspects. That is, the DNA samples which are collected from the various suspects, we will inspect that thing. We will use that fragmented DNAs of those persons as a DNA probe. Now, if the DNA sample which was collected from the spot is having the same DNA complementary, then this DNA probes will definitely bind with the extracted DNA. Now, which proves, what does it prove? Yes, it proves, yes, that particular, जिसके साथ भी ये मिलेगा, जिसके साथ भी ये complementary sequences होगा, जहाँ पे एक्सरे में हम लोग को दिखेगा कि ये बाइंड हुआ है. क्यों एक्सरे? Because radioactivity will be reflected in the X-ray plates, not the normal one. थोड़ा अलग होता है, थोड़ा just देखने में ऐसा ही होता है. So उसमें क्या करते हैं हम लोग? What we do? We are getting the reflections, that is binded reflections. कि एक साइड में है रेडियोएक्टिव प्रूफ है और दूसरे साइड में हम लोग का एक्सट्रैक्टेड सैंपल है. सो कंप्लीमेंट्री तभी होगा जब वो सस्पेक्ट, वो क्रिमिनल जिसने मर्डर किया उसके साथ वो ब्लड सैंपल का जो डीएनए है उसके साथ मिल गया है. सो विच प्रूव्स दैट दैट पर्टिकुलर से ए is responsible for the murder of, say, E. So this is the DNA fingerprint. Now, ये तो सही है, लेकिन हम लोग ये प्रूव बनाते कैसे है, या फिर ये हम लोग निकालते कैसे है, कि कैसे एनालिसिस होगा, क्या क्या करते हैं हम लोग जिसके हम लोग को पता होता है कि नहीं ये सस्पेक्ट्स का डीएनए में ये सब होता है. तो ये जानने के लिए व्हाट वी नीड इज, वी नीड टू नो about two very interesting process or feature or technique or style known as chromosome walking and chromosome jumping. हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सिली है सुनने में. क्रोमोसोम वॉकिंग और जंपिंग क्या है? या क्रोमोसोम उछल रहा है या फिर चल रहा है? क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हो क्या रहा है भाई? जंप कर रहा है या फिर वॉक कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन यू. पहले हम लोग लेते हैं डीएनए क्रोमोसोम जंपिंग. सो क्रोमोसोम जंपिंग में क्या हम लोग करते हैं? मान लीजिए दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल. ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल. ना हम लोग जंपिंग में क्या करते हैं? वी यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ रेडियोएक्टिव सेट्स ऑफ डीएनए बेस पेयर्स. हम लोगों ने मान लीजिए 3 बेस पेयर्स ऐसे जो हर कोई रेडियोएक्टिव होता है. ना हम लोगों ने क्या किया? इस डीएनए सैंपल को पहले एक ट्यूब में लिया. आफ्टर ट्यूब में लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इसको हीट किया, थोड़ा हीट बढ़ दिया. कितना हीट दिया? नियरली 92 डिग्री सेल्सियस. सो इस टेम्परेचर में क्या होता है? ये दोनों जो स्ट्रैंड है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, दे गेट सेपरेटेड. Now once they are separated, we introduce these 3 sets of probes or DNA probes जो हम लोगों ने लिया है. तो ये probes हम लोग कैसे लेते हैं? बेसिकली हम लोग ये रैंडम लेते हैं. रैंडम मतलब कुछ सेट्स ऑफ डीएनए लेते हैं जो शायद कंप्लीमेंट्री हो इस सीक्वेंस से. तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक जीन कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, अलग होने का चांसेस होता है.
मान लो कि जो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेस कट, या फिर आप लोगों का हेयर स्टाइल, या फिर जो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन टोन विल बी डिफरेंट, या फिर टेक्सचर ऑफ योर स्किन, या फिर आपका ब्लड का जो होता है, ब्लड प्रोड्यूस होता है वो अलग होता है, क्योंकि किसी का ए नेगेटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, अलग होता है। सो इस काइंड ऑफ हम लोग को जीन्स का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस लेते हैं जो एक्चुअली कैन एक्चुअली बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टीम। ये अननोन है हमारा, ये हम लोगों को पता नहीं है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको डीनेचर कर दिया। सो आफ्टर दिस डीनेचरेशन एट 92 डिग्री सेल्सियस वी पुट दिस स्ट्रैंड्स ओवर देयर। ना इसमें से ये हम लोगों ने 3 सैंपल लिया, मान लीजिए ए बी सी। इसमें से जो बी है ये एट 54 डिग्री सेल्सियस जब ये फिर टेम्परेचर लो किया, तब ये हम लोगों को देखा कि ये बाइंड हो गया, से यहाँ पे ये बाइंड हो गया, इस जगह पे ये बाइंड हो गया। इस जगह पे बाइंड हो गया का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? मतलब इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन द अननोन डीएनए। नाउ ये हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये बाइंडेड है? एज आई टोल्ड यू, दिस डीएनए प्रोब्स आर अगेन रेडियोएक्टिव इन नेचर। यस, इट इज रेडियोएक्टिव इन नेचर। और अलग अलग रेडियो एक्टिविटीज हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए पहले ये सैंपल दिया, फिर ये सैंपल दिया, फिर ये सैंपल दिया, अलग अलग टाइम पे लेते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, ये वाला पोर्शन का सीक्वेंस जो है इस डीएनए में क्या है हम लोग को पता चल गया इससे। नेक्स्ट हम लोगों ने और ऐसे ट्राई करते गए तो कभी यहाँ का पता चला, कभी यहाँ का पता चला। सो लाइक वाइज वी डू द होल थिंग, जितना हो सके, जितना अमाउंट ऑफ जितना हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पोर्शन से जंप करके दूसरा पोर्शन का वे जंपिंग फ्रॉम वन प्ले सीक्वेंस, complementary sequence to the next complementary sequence, and likewise we go on finding the maximum probable DNA sequences which is present in the unknown sample of DNA. So यहाँ पे हम लोग जंप कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस, एक सेट यहाँ पे है, दूसरा सेट अलग जगह पे है, तीसरा सेट अलग जगह पे है, तो हम लोग जंप कर रहे हैं। सो दिस टेक्निक, दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज नोन एज क्रोमोसोम जंपिंग। सो ये बहुत ही फायदेमंद टेक्निक है। ये टेक्निक से हम लोगों को पता चलता है यस कि हम लोगों ने जिसको सस्पेक्ट किया था उनके डीएनए में सीक्वेंस क्या है। हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट में जिनसे कंपेयर करेंगे, जो सैंपल से कंपेयर करेंगे, उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो सस्पेक्ट के डीएनए क्या है, what is the complementary sequence, what are the sequences which is present in the particular various suspects which are there. So इसलिए हम लोगों ने ये टेक्निक निकाला जिससे कि हम लोगों को पता चले कि ये क्रोमोसोम जंप्स करके हम लोगों ने निकाला। सो दिस इज अ टेक्निक कॉल्ड एज क्रोमोसोम जंपिंग। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम वॉकिंग। वॉकिंग थोड़ा टाइम टेकिंग चीज है, काफी टाइम टेकिंग चीज है एक्चुअली, थोड़ा नहीं बहुत ही टाइम लेता है। बेसिकली उसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने डीएनए प्रूव किया, ठीक है, बट इन क्रोमोसोम वॉकिंग हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये फिर से हम लोगों का ये डीएनए स्ट्रैंड है जो कि ये है अपना डीएनए स्ट्रैंड। नाउ इस डीएनए में बेसिकली नहीं, हर एक डीएनए में क्या होता है कि इट इज मेड अप ऑफ ए टी जी सी। यस, इट इज देयर। दिस nitrogenous bases are always present in every set of DNA. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस डीएनए का कॉपी बना लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने कैसे कॉपी बना सकते हैं, पीसीआर करके बना सकते हैं। तो हम लोगों ने कॉपी निकाला, हर एक कॉपी को अलग अलग जितना कॉपीज होता है उनको लग दिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस चीज को कॉपीज को हम लोगों ने अलग अलग ट्यूब्स में ले दिया, अलग अलग ट्यूब्स में ले दिया। हम लोगों ने 4 ट्यूब लिया। अब 4 ट्यूब्स में हम लोगों ने क्या किया,
इसका जो कॉपी है इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला और इसमें भी डाला। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हर एक में हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया सर 92 डिग्री सेल्सियस। अब 92 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने जब बढ़ा दिया टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर क्या होगा, अगेन इट विल बी डीनेचर्ड, दैट इज दो स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। और उसी वक्त उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट थिंग लेट्स स्टार्ट विद ए। हम लोगों ने ए इसमें डाला हुआ है, अलग से एटीपीज डाला हुआ है, जिसमें कि ए जो है ये रेडियोएक्टिव है। बेसिकली ये रेडियोएक्टिविटी कौन देता है, फॉर नाइट्रोजनस बेसिस इट इज नाइट्रोजन 14 N15 विच इज रेडियोएक्टिव इन नेचर, N15 इज रेडियोएक्टिव। हम लोगों ने ए बनाने के टाइम पे व्हाट वी हैव यूज्ड द रेडियोएक्टिव वर्जन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15। अब हमने इसको डीनेचर कर दिया, ओके। नाउ ये हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है। फिर से हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को 54 डिग्री सेल्सियस में डाउन कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो सैंपल अलग हो चुके हैं, यहाँ पे जहां जहां पे टी है वहां पे ये हमारा जो बंदा है ए जो कि रेडियोएक्टिव है ये बाइंड हो जाएगा। सेम हम लोगों ने पूरे डीएनए में जहां पे टी है वहां पे ये बाइंड हो जाएगा। तो सेम हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने जीटीपी लिया, इसमें हम लोगों ने सीटीपी लिया, इसमें हम लोगों ने टीटीपी लिया। तो मतलब हम लोगों को क्या पता चल रहा है, इसमें से पता चल रहा है कि ये जो डीएनए सीक्वेंस है इसमें कहां पे टी है। इसमें से हम लोगों को क्या पता चलेगा कि कहां पे सी है। इसमें से हम लोगों को क्या पता चलेगा, कहां पे जी है। इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, कहां पे ए है। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, हर एक नाइट्रोजनस बेस को हम लोग परख कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली एनालाइजिंग ईच एंड एवरी नाइट्रोजनस बेसिस एंड वी आर गेटिंग कि कहां पे लोकेशंस है। अब लोकेशंस कैसे पता चलेगा, कि जहां पे हम लोग एक्सरे में लेंगे, एक्सरे we will take the photocopy in the X-ray plate, जहाँ पे एक्चुअली इसका लिया पहले मान लीजिए, जहाँ पे रेडियोएक्टिविटी शो कर रहा है वहाँ पे हम लोगों का क्या है, टी है। सेम इसमें क्या है, जहाँ पे सी है जी, जहाँ पे सी है वहाँ पे जी, जहाँ पे टी है वहाँ पे ए। सो बेसिकली ऐसे करके हम लोगों को क्या पता चला, पूरा सीक्वेंस we have worked along the total sequence of the DNA fragment. So ये पूरा जो DNA sequence का जो हम लोगों को पता चल रहा है, so this process is known as chromosome working। जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, basically what we did is we worked along the DNA. Yes, we worked along the DNA and we got this thing. So ये दोनों ही चीजें यूज होता है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है या फिर ज्यादा सिंपल होता है तो भी हम लोग जल्दी करने के फिराक में हम लोग जंपिंग करते हैं, एंड इफ वी हैव टाइम वी ऑलवेज परफॉर्म वर्किंग। सो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि डीएनए सैंपल्स क्या होता है, व्हाट इज डीएनए सैंपल्स, कैसे होता है, क्या हो रहा है, नहीं होता है। सो दिस इज क्रोमोसोम जंपिंग एंड वर्किंग। नाउ लेट मी डिस्कस with you people another important topic, या फिर और एक मजेदार टॉपिक, दैट इज जीन गन। नो, ये जीन गन क्या है, गन। सो यस, ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये जीन का गन है। मतलब यहाँ पे गोली जीन है। यस, इसमें गोली क्या होता है, जीन होता है। मान लीजिए मुझे कोई जीन एक सेल के अंदर एक डीएनए में एंटर करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा शेयरिंग करके उस सेल के मेम्ब्रेन को थोड़ा ओपन कर देते हैं, और फिर हम लोग ये जो जीन गन है उसे क्या करते हैं, तो ये समहाउ ये अंदर होके इसके अंदर चला जाता है। सो दिस इज जीन गन।
Next is another important topic is वेरिएबल. इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. टैंडम रिपीट्स क्या होता है हम लोग को ऑलरेडी पता होता है. टैंडम रिपीट्स क्या होता है कि इस साइड से सीक्वेंस जैसा होगा, इसके ठीक ऑल्टरनेटिव में भी इस साइड से भी सीक्वेंस सेम होगा. सो दीज आर कॉल्ड टैंडम रिपीट्स. वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स क्या होता है? बेसिकली हर एक के डीएनए में, हर एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में ये बहुत सारे पैमाने पे पाया जाता है, ये टैंडम रिपीट्स. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो जीन क्रोमोसोम वॉकिंग है या फिर जो क्रोमोसोम जंपिंग है, उसमें हम लोग टैंडम रिपीट से भी निकाल सकते हैं कि किसके पास कितना टाइप ऑफ टैंडम रिपीट्स है. वो कॉमन रहता है एक्चुअली, हर एक में कॉमन रहता है. सो ये टैंडम रिपीट्स यूज करके हम लोग ना ही सिर्फ सस्पेक्ट्स को भी निकाल सकते हैं, या फिर वी कैन कम अलोंग अक्रॉस सम डिजीजेस कि उस सैंपल में एक बैक्टीरिया है, उसके डीएनए में कितना टैंडम रिपीट्स है, उससे भी हम लोग कुछ उसका डीएनए सीक्वेंस निकाल सकते हैं. सो ये है ओके वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. सो these are the few topics in biotechnology. Yeah, I'm saying it again. If you have any doubts, any query, just ping me out on my number which is given in the description. Thank you for today.